Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to see the subject accounts, unit number 5 of part 2, accounting ratio and analysis for the 12th commerce English medium. This is lecture number 3 for this chapter. So in the previous lectures what we had completed the meaning of accounting ratio, objective of accounting ratio, limitations of accounting ratio, classification of accounting ratio, traditional and functional classification, and in that we had also completed the gross profit ratio formula portion. ओके आज मैं फिर से बता देता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है हमारे कौन कौन से हैं. सो प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो हमारे हैं लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो. एक काम कीजिए, आंख बंद कीजिए और ये चारों नाम दीजिए वापस से. हाँ ठीक है, पॉज करो, आंख बंद करो और वापस से सोचो कौन कौन से रेशियोज थे. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, net profit ratio, operating ratio and operating profit ratio. So these are the ratios of profitability. Now gross profit ratio कल हमने डिस्कस कर लिया था. क्या किया था हमने डिस्कस? So gross profit ratio disclose the relation between gross profit and total net sales of business. Formula क्या है? So gross profit ratio is equal gross profit divided by total net sales into 100. ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑब्जेक्टिव ये है कि इस रेशियो से आप प्रॉफिट जो है वो मेज़र कर सकते हो. ट्रेंड क्या है? इट इज़ इनकम बेस्ड रेशियो, दस इट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड इंडिकेट एनहेंसमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का ये फॉर्मूला था जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, और ये जो नीचे दिया हुआ है इससे आप जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर सकते हो. नाउ चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो क्या है illustration? So calculate gross profit ratio from the given information. पर्टिकुलर क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, दोनों ही दिया हुआ है, आपको कुछ भी फाइंड करना नहीं है. तो ये 2016 की इन्फॉर्मेशन है और ये 2017 की इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपको ग्रॉस प्रॉफिट 2 टाइम्स फाइंड करना है. तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो हमारा जीपी रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. यू कैन सी नाउ फॉर 2016, मतलब ये 2016 का कैलकुलेशन ये रहा. 120 is gross profit divided by 4,80,000 into 100, 25%. This is gross profit. And in 2017 the gross profit is 1,80,000 divided by 6 lakh into 100, that is 30%. So hopefully this illustration is clear to you. Now interpretation, अगर इसे हम interpret करें, as compared to the previous year gross profit ratio is increased from 25% to 30%. It indicate growth in gross profitability of business. Okay, now let's have the illustration number 2. Sales is given to you 8 lakh and cost of goods sold is given. Now what is not given is gross profit is missing. What is missing? Gross profit. So how can we find the gross profit? Gross profit का formula है sales minus cost of goods sold, COGS. Now check it. So gross profit is not provided, thus gross profit is required to be calculated. Gross profit is equal sales minus COGS, cost of goods sold. 2016 के लिए अगर देखें तो 2 lakh minus 8 lakh, 6 lakh, 8 lakh minus 6 lakh, the answer is 2 lakh, and 12 lakh minus 10 lakh, the answer is 2 lakh. Now the formula of gross profit, so formula of gross profit is, as I said, gross profit divided by total net sales into 100. Now this is the calculation as you had seen in the previous illustration. Okay, so hopefully it is clear to you. So hopefully this illustration is clear to you. So that's all for today. Now होमवर्क ये है कि आपको सम नंबर 4 जो है पेज नंबर 250 पे है वो कंप्लीट करना है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 and 2 वो भी कंप्लीट करना है 2 टाइम्स. ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय. सो अभी जो हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, वो लेक्चर बहुत ही छोटा बना है. इसके लिए मैं लेक्चर नंबर 4 भी जो है उसे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा. अभी कंटिन्यू ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो चलता जाएगा. ठीक है. नाउ सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने देख लिए थे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लिया था, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे COGS कैसे फाइंड करते हैं हमने ये भी देख लिया था. नाउ अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ. नाउ इन्फॉर्मेशन ऑफ 2 year of Q Limited इज एज फॉलो. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो.
अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए सेल्स, जो कि एकदम क्लियर कट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना होता है, ये रहा सेल्स रिटर्न, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो नेट सेल्स यहाँ बचेगा 10 लाख और यहाँ पर बचेगा 15 लाख का नेट सेल्स। आगे देखें ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक है 1,40,000 एंड 160, मतलब यहाँ आपको सेल्स दिया हुआ है। What is not given to you is gross profit. So gross profit नहीं दिया तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो gross profit नहीं दिया है तो आप फाइंड करोगे सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है तो क्या करोगे, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सो सी देखिए, जैसे कि मैंने फॉर्मेट में बताया था कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको मिल जाएगा ये नेट सेल्स, ठीक है। सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न माइनस करोगे सो यू विल गेट द नेट सेल्स एंड दैट इज 10 लाख एंड 15 लाख, ओके। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर उसमें से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एज आई डिस्कस्ड जस्ट 5 मिनट अगो, ओके। अभी अभी हमने जो लेक्चर नंबर 3 की पीडीएफ थी उसमें हमने देखा था। सो नाउ ओपनिंग स्टॉक दैट वाज गिवन इन द सम 140 एंड फॉर 2017 it was 160, purchases 60,000 and 8 lakh, purchase expense 30,000 and 40,000. so ऐड करने के बाद उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया तो ये जो बचा 6,10,000 ये हुआ हमारा COGS, ये हुआ हमारा COGS। अब सेल्स में से COGS माइनस कर दोगे तो क्या बचता है, तो जो बचता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2016 इज 3,90,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2017 is 6,50,000. So we have gross profit, we have sales. So what is needed? Needed is formula. So apply the formula, gross profit ratio is equal gross profit divided by net sales. Now gross profit is 390 divided by 10 lakh into 100, 39% is the gross profit, and for the 2017 6,50,000 and divided by 15 lakh into 100, 43.33% is gross profit. Okay, so is there increase? Yes, there is increase. So we can say that the performance of company is good. Now come to the illustration number 4, the same illustration as it was in illustration 3. 2 years information of F and company is given below, calculate gross profit ratio from that. Now the sales is given, sales is 10,20,000 and 15,50,000, सेल्स रिटर्न इज गिवन, हम वैसा ही माइनस कर देंगे। फिर परचेस एक्सपेंस और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, तो चेंज इन स्टॉक जैसा दिया हो वैसा करना होता है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। इज दैट क्लियर? सो सी द कैलकुलेशन, दिस इज नेट सेल्स, हाउ इट इज डिराइव्ड, सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, सो परचेस प्लस परचेस एक्सपेंस प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो माइनस रहेगा। तो परचेस 6 लाख जो कि सम में दिया हुआ था, परचेस एक्सपेंस भी 30,000 सम में दिया हुआ है। अगर बेटर क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो आप अपनी बुक का क्वेश्चन भी निकाल करके बैठो। नाउ चेंज इन स्टॉक negative 20,000, so cost of goods sold is 6,10,000. Here for the 2017 purchase is 8 lakh, purchase expense is 40,000 and change in stock is positive 10,000. So the cost of goods sold is 8,50,000. Now ultimately our gross profit would be sales minus GP, that is 3,90,000 and 6,50,000. Okay, I think I made a mistake or something else, I don't know. No, yeah, so the answer is 39%. The answer is 39% and 43.3%. I think the same answer that was there. Just a second. 390 and 6,50,000. Yeah, it's the same answer. Both in both the sum. I don't know whether the sum is same or not. Illustration 3 Q Company Limited and this is F Company Limited. So how it could be same, but answer is same. Okay, no issue. So note, explain the treatment of stock. The detail except stock of illustration 3 and 4 are kept identical. Okay,
मतलब इलस्ट्रेशन 3 और 4 जो है वो आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों के आंसर सेम है। इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये अचानक से क्या हुआ कि सेम कैसा है, बट कोई नहीं, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो आपका काम क्या है, जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसकी थियरी लर्न करना है, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 कंप्लीट होना चाहिए, और सम नंबर 4 पेज नंबर 246 और आगे पीछे हो सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में सम नंबर 4 आपको कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।